السلام علیکم، ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول یقین کامل، تحریر ہے ہیرا نواز کی۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ آسمان کو بادل اپنے گھیرے میں لے رہے تھے اور سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان بہتا وہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ زمین سے ٹکرا کر شور مچا رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ہرے بھرے کھیت دکھائی دے رہے تھے جو اس منظر کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وہ ننھی سی پری ہلکے گلابی رنگ کے فراق پہنے بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماما ناراض نہ ہو جائیں، انہیں بتایا نہیں نا؟ وہ اس انجان شخص سے معصومیت سے بولی۔ نہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گی، ہم اور ماما گیم کھیل رہے ہیں، میں اور آپ چھپیں گے، وہ ہم دونوں کو ڈھونڈیں گی۔ وہ یہاں وہاں نظروں کو تیزی سے گھما کر بولا۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا! ننھی پری کھلکھلا کر ہنسی۔ پہاڑوں نے چاروں طرف برف کی سفید چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ گرتے پڑتے بوا بیگم کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کا برقع کانٹوں سے جگہ جگہ سے پھٹ رہا تھا۔ سردی کے باعث پاؤں نیلے ہو رہے تھے، مگر اب وہ پہلے سے کافی پرسکون معلوم ہو رہی تھی کیونکہ حویلی بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ کیسے بھی جلدی سے جلد شہر پہنچنا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ رفتار میں تیزی لے کر آئی۔ شہر میں قدم رکھتے ہی وہیں سڑک کے کنارے رک گئی، چونکہ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ بوا بھی بہت تھک گئی ہیں۔ انہیں سڑک کے کنارے بٹھا کر پانی کی تلاش میں نکل آئی کہ پتھر پر پاؤں آنے سے پھسل کر گرنے لگی تھی کہ کسی نے تھام لیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا کہ آنسو بے اختیار رواں ہو گئے۔ دوستی کا مطلب ہاتھ پکڑنا نہیں بلکہ گرنے سے پہلے تھام لینا ہے۔ سارا نے اس کے آنسو پوچھ کے گلے لگایا۔ بی اماں، اگر وہ نکاح کے لیے راضی نہیں تو کیا ہوا؟ اس کی اپنی زندگی ہے اور وہ ابھی چھوٹی ہے، اور میں نے بھی تو ابھی پڑھنا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، انسان کی پسند بدل جاتی ہے، اور وہ تو بس میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی۔ بی اماں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ لیکن آدی، تم جا سکتے ہو اب، اور یہ مت بولو، ابھی تم بھی چھوٹے ہو۔ بی اماں کے کہتے ہی آدی نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ گیلری سے گزرتے اسے پردے کے پاس سے رونے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی پردے کو ہلتا دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہاں کون ہے۔ تم بے فکر ہو، مجھے اس نکاح سے کوئی غرض نہیں، جب تم آزادی چاہو گی مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ 12 سالہ آدی 5 سالہ پری کو کیا کہہ کر گیا تھا، اس کا انداز اس بچی کو نہ تھا۔ اس کے آنسو رک گئے تھے۔ یونیورسٹی میں وہ دونوں ایک ساتھ داخل ہوئی اور انہیں دیکھ کر سب حیران ضرور ہوئے تھے۔ ایک برقع پہنے مکمل پردے میں بھوری سیاہ آنکھوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہاں دوسری پینٹ شرٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری اور بال شانوں پر بکھیرے، مسکرا کر باتیں کرتی ہال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاید سب یہی سوچ رہے تھے کہ دو الگ شخصیات، الگ سوچ اور حلیہ رکھنے والی میں دوستی کیسے ہوگی۔ ایکسکیوز می، نیو کمرز کلاس کہاں اٹینڈ کر رہے ہیں؟ سارا نے ایک لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی، 2nd فلور پر رائٹ سائڈ 1st کلاس ہے۔ اس کا جواب سنتے ہی دونوں کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ دیکھے بابا آ گئے۔ بابا! ننھی پری زور سے چلائی۔ زارون پری کو اجنبی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بیٹا، یہ کون ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زارون نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا، میں اور انکل ماما کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پھر ماما ہمیں ڈھونڈیں گی۔ کتنا مزہ آئے گا! پری جو پرجوش سی زارون کو بتانے لگی۔ زارون نے غصیلی نظروں سے اجنبی کو دیکھا۔ صاحب، بچی ہی ضد کر رہی تھی، وہ نظریں چرا کر بولا اور تیزی سے چل دیا۔ بیٹا آؤ، ہم گھر میں کھیلیں گے اور ماما کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ زارون پری کو سمجھاتے ہوئے گھر کی جانب بڑھا۔ آج یونیورسٹی سے واپس آ کر آرام کیا گھر سے وہ لیٹا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہ لڑکی اس کے ذہن میں آ رہی تھی، سب سے منفرد، کتنی پرسکون لگ رہی تھی وہ۔ صاحب جی، آ کر کھانا کھا لیں۔ ملازم کی آواز پر وہ سوچوں کے سمندر سے نکلا۔ جی آتا ہوں، آپ جائیں، تمام سوچوں کو جھٹک کر بولا اور فریش ہونے کے غرض سے واش روم کا رخ کیا۔ علی صاحب، کیا آپ بیٹی کو ڈھونڈیں گے؟ کیا معلوم وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ اس کے کھانے کی میز پر پہنچتے ہی چچا گھر کے پرانے ملازم نے فکر مندی سے کہا۔ چچا، آپ کو 1000 مرتبہ کہا ہے مت نام لیا کرے میرے سامنے اس کا، پردے کی آڑ میں داغ لگا کر گئی ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے ہمیں، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب تو پردے میں موجود ہر لڑکی ویسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ یکدم اس کے ذہن میں موجود وہ اجنبی لڑکی آئی جو خود پر افسوس کرتا بغیر کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں پردے کی آڑ میں دھوکے کا شکار رہوں گا۔ اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکا۔
सारे टीम मेंबर्स इकट्ठे हों। अभी के अभी ग्रुप में हेड का मैसेज सुनते ही वो तीनों अलर्ट हो गए थे। सेफ हाउस का रुख किया। बेल पे हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया। वो तीनों अंदर जा चुके थे। सबको अपना अपना काम समझा दिया गया। लोकेशन आप लोगों को भेज दी गई है। ट्रक में 12 लड़कियों को किडनैप किया गया है। किसी किस्म की जल्दी नहीं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। सब सेफली अपने अपने घर पहुंच जाएं। गॉट इट। पर्दे के इस पार्ट से मर्दाना आवाज के रुकते ही सब ने यस कहा। अब आप लोग जा सकते हैं। इनके जाते ही पर्दा गिराकर मुस्कुराई। आधे घंटे बाद ही इसे सबके महफूज होने की खबर मिल चुकी थी। वो पहले से जानती थी इसके टीम मेंबर्स हर दफा की तरह इस मर्तबा भी अपनी सलाहियतों को जुए कार्ड दिखाते हुए कामयाबी हासिल कर लेंगे। कुलसूम ज़ारून ने घर में दाखिल होते ही आवाज लगानी शुरू कर दी। चची जी आप और कब आए? कभी बताकर नहीं आए। हमेशा सरप्राइज देते हैं। और परी का आप कहाँ थी? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। ज़ारून के साथ परी को देखकर सवाल का डाला। अरे एक सांस में इतने सवाल, सांस तो ले लो। और परी मेरे साथ हैं, आप जाएं और पानी पिला दे बेगम। ज़ारून मुस्कुराते हुए बोला। जी लाती हूँ। कुलसूम कहकर किचन की तरफ बैठी। बेटा मामा को अंकल के बारे में ना बताना, वो परेशान हो जाएंगी और आपसे नाराज भी। और एक और बात, अच्छी लड़कियां लड़कों से बातें नहीं करती और ना ही अजनबी के साथ जाती हैं। ज़ारून परी को समझाते हुए बोला, जो कि बहुत गौर से इसे सुन रही थी। ओके बाबा, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। परी कान पकड़ते हुए बोली। गुड गर्ल। अच्छा बताओ, मेरी बेटी ने आयतल कुर्सी याद कर ली? आपको याद है मैंने कहा था जब वापस आऊंगा फिर सुनूंगा। ज़ारून कुलसूम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोला। बाबा वो बहुत लंबी, मुझे नहीं याद होती। मामा रोज पढ़ाती हैं, फिर भूल जाती हूँ। अब मैं नहीं पढ़ती। वो छोटी सी नाक को खींच कर बोली। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। याद नहीं करोगी तो अल्लाह से कैसे बातें करोगी? अभी तो और भी दुआएं याद करनी है। इसके बाद मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अभी फट से याद कर लेगा। क्यों ना बेगम कुलसूम? ज़ारून कुलसूम को भी गुफ्तगू में लाते हुए बोले। ज़ारून की बातों पर परी नाक चढ़ाकर मुंह बनाने लगी, जिसे देखकर इन दोनों का कहका हवेली की दीवारों में गूंजा। जबकि दूर खड़ी किस्मत नमी से मुस्कुरा दी। बाबा उठे ना, आंखें खोलें। बाबा आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज आंखें खोलें, आप नाराज ना हो। मैंने आयतल कुर्सी भी याद कर लिया, आप सुने ना। मैं सुनाऊंगी बाबा। 4 साल परी की आहो पकार पर वहां हर आंख अश्कबार थी। वो नन्ही परी अपने बाप से एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं होती थी। वो देखो इसे क्या हो गया, उठाओ इसे। भीड़ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इस जानिब दौड़ते कुलसूम बेहोश हो चुकी थी। इसे अस्पताल ले जाया गया और परी पापा को बुला रही थी, जिसने अब कभी नहीं बोलना था। रो नहीं, बाबा को तकलीफ होगी, वो अभी सो रहे हैं, तुम्हें रोने से जाग जाएंगे। 11 साल आदि इसका तायाजाद 4 साल परी को बहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दूर हटो, आप मुझे हाथ ना लगाना। बाबा कहते हैं अच्छी लड़कियां लड़कों से बातें नहीं करती। देखे ना बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी, एक मरतबा मुझसे बात कर लें। वो आदि को दूर धकेलते हुए बोली। आदि इसकी बात से वहीं साकित हो गया। आंसू तो के थम ही नहीं रहे थे। वो जोरों कुतार रो रही थी। तुम जानती हो, इसने कहा, तुम जैसी लड़कियां शादी के लिए नहीं होती। हाँ, टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर मैं तुम्हारे साथ टाइम पास भी नापसंद करता हूँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो एकदम चिल्ला उठी। देखो, जिंदगी एक सफर है। कहीं खुशी के फूल खिलते हैं तो कहीं गम की धुन छा जाती है। कभी मोहब्बत तुम्हारे कदमों में खुशबू बखेरती है तो कभी आजमाइश दिल को थामने पर मजबूर कर देती है। लेकिन याद रखो, ये सब रास्ते के मंजिल है, असल मंजिल नहीं। वो इसे प्यार से समझा रही थी। अच्छा तो मंजिल क्या है? सारा ने इसकी बातों को सुनते मासूमियत से सवाल किया। मंजिल सब की अल्लाह है, हिजाब ने मुतमईन होकर जवाब दिया। मगर मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। परी सारा ने एक और सवाल उठाया। हाँ तो मोहब्बत हमें सब्र सिखाती है, आजमाइश हमें मजबूती अता करती है। जब हम इन सब को रब की तरफ जाने वाले रास्ते की निशानियां समझते हैं तो हर दर्द में इबादत बन जाता है। याद रखो, रुको मत थको, क्योंकि जो मंजिल अल्लाह की रजा हो वहां पहुंचने वाला कभी नाकाम नहीं होता। हिजाब इसे समझाते जाने कहाँ खो गई थी, मगर अब सारा के आंसू थम गए थे। अब वो अपनी मंजिल से आशना हो चुकी थी, जिससे वो बचपन से गाफिल रही थी। दिन कैसे गुजरे इल्म ही ना हो सका। कल से एग्जाम शुरू होने वाले थे और हिजाब नोट्स मुकम्मल करने के लिए कॉलेज आई थी। रोज के बरक्स आज वो तनहा थी। सारा तबीयत की खराबी के बायस नहीं आ सकी थी, इसीलिए हिजाब लाइब्रेरी में ही बैठ गई। करीब से गुजरते हुए अली की निगाह हिजाब पर पड़ी और इसके कदम खुद ब खुद इसके जानिब बढ़ने लगे। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, कैसी हैं आप? अली ने सलाम करते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो नशिस्त से उठते हुए बोली, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और
وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ علی تمہید باندھتے ہوئے جی، حجاب نے متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میں بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، اصل میں آپ کو پسند کرتا ہوں، نکاح کا خواہش مند ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے والدین کو آج ہی آپ کے گھر بھیج دوں۔ علی نے تعصب سے کہا، دیکھیں سر، اگر تو یہ مذاق ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا۔ حجاب غصے کو دباتی بولی، نہیں، میں بھلا ایسا مذاق کیوں کروں گا، آپ سوچ کر جواب دے دیجیے گا۔ علی مطمئن ہو کر بولا، اس میں سوچنا کیسا، آپ میرے استاد ہیں اور میرے لیے قابل قدر ہیں، مگر میں آپ کے لیے ایسا نہیں سوچتی، اسی لیے آئندہ مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اس نے بغیر ہچکچاتے کہا تھا، مگر سوچ کر تو نہیں، میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس نے علی کی بات مکمل ہونے سے پہلے کاٹ دی اور باہر کا رخ کیا۔ علی مزید کچھ نہ بول سکا۔ میرے ساتھ ہی کیوں برا ہوتا ہے پری؟ آج پھر سارا اپنا ضبط کھو کر بیٹھی بولی، ایسا نہیں کہتے۔ حجاب اسے سمجھانا چاہتی تھی، تو کیسا کہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، پہلے بابا کا جانا اور اب یہ۔ وہ آنسوؤں کو پونجھتے ہوئے بولی، دیکھو، اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کے درجات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حجاب اسے سمجھاتے ہوئے بولی، پری، مجھے تمہاری باتیں دل کو لگتی ہیں، میں نماز پڑھنا چاہتی تھی رات کو جب تمہاری باتیں سمجھ آئی، مگر کیا سارا، مجھے بتاؤ۔ حجاب نے اس کی خاموش ہوتے پوچھا، مگر مجھے تو وضو کرنا بھی نہیں آتا، کیا تم مجھے سکھاؤ گی؟ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے حجاب سے کہا، ارے پاگل، کیوں نہیں، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تم مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، یاد رہے تم نے کیا کہا تھا۔ حجاب اس کی طرف نگاہیں ملا کر بولی، کیا؟ سارا ذہن میں دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، دوستی کا اصل مطلب ہاتھ پکڑنا نہیں بلکہ گرنے سے پہلے تھام لینا ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے کہا، پری، تم ٹھیک کہتی ہو، تم کتنی اچھی ہو۔ سارا حجاب کو گلے لگاتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے 1000 درجے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ اگر تمہیں سعد مل جاتا تو تم کیسے اللہ کے قریب ہوتی؟ تمہارا دل ٹوٹا ہے تو تم اللہ کی طرف راغب ہوئی ہو، اب اسے اللہ جوڑے گا۔ حجاب اس کے آنسو کو پوچھ کر تڑپ کر بولی، ہاں پری، تم ٹھیک کہتی ہو، میں ہی نادان تھی جو اپنے رب کو بھول بیٹھی۔ سارا کے الفاظ ادا ہوتے ہی آنسو ایک مرتبہ پھر سے بہت نکلے تھے۔ تم نہ مجھے پری نہ کہا کرو، حجاب نام ہے، پری تو میں بابا کی تھی اور شاید کسی اور کی۔ وہ اسے ہنسانے کے لیے بولی، لیکن خود کو رونے سے روک نہ پائی، کیوں نہ بولوں، میری بھی تم پری ہی ہو، یاد ہے ہم بچپن میں ملا کرتے تھے، تم پہلی مرتبہ میں ماما بابا کے ساتھ تمہارے گاؤں گھومنے آئی تھی، تمہیں پانی کے قریب کھیلتے دیکھا تھا، تبھی تم مجھے بہت پسند آئی تھی۔ میں نے تمہارے قریب آ کر پوچھا تو خوبصورت پری، تمہارا نام کیا ہے؟ سارا ماضی میں کھو گئی، ہاں جی، وہ وقت کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ وہ آنسو پوچھتے سارا کو گلے لگا کر مسکراتی، آج کالج میں آخری دن تھا، پیپر ختم ہونے کے بعد سارا اور حجاب سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ جونیئر کی آواز پر رک گئی، آپ میں سے حجاب کون ہے؟ وہ دونوں ہی مکمل پردے میں تھی، کیونکہ سارا ساتھ سے ٹکرائے جانے کے بعد رب سے جڑ گئی تھی، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے وہ پہچان نہ پایا۔ میں ہوں، کیوں؟ حجاب حیران ہوئی تھی۔ آپ کو سر علی بلا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہی اس نے نیچے کا رخ کیا، اب کیا کروں؟ حجاب اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی، صاف بتا دینا آج تاکہ کوئی امید باقی نہ رہے، یہی رکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سارا وہیں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم سر، میں آئی کم ان؟ حجاب دروازہ نوک کرتے ہوئے بولی، یس آ جائیں۔ علی سلام کا جواب دیتے بولا، حجاب میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تجھے دیکھے تو لگتا ہے کئی اشروں جلستے موسموں برفبار رستوں کی سیاحت سے پلٹ کر آئے ہیں، تجھے دیکھے تو لگتا ہے کہ ہم گھر آ گئے ہیں۔ علی تڑپ کر بولا، مجھے لگتا ہے اب مجھے جانا چاہیے۔ حجاب نگاہیں چرا کر بولی، ہاں، ہم جدت کے زمانے میں شدت کی محبت کرنے والے پرانی صدی کے لوگ ہیں، آپ کہاں سمجھیں گی، ہم جیسوں کو تو سمجھنے کے لیے آپ کو دریا کے الٹے بہاؤ کی کہانی پر الہامی یقین کرنا ہوگا۔ وہ اپنی آنکھ سے گرتے آنسو کو پیچھے دھکیل کر بولا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی۔ وہ چلا کر بولی، کیوں؟ آخر کیا کمی ہے مجھ میں؟ کوئی ایک وجہ؟ وہ بے بسی سے بولا، کیونکہ میں کسی کے نکاح میں ہوں، شادی ہونے والی ہے میری۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب بھاگی، جبکہ علی وہاں سے ہل نہ سکا۔ اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے، کیونکہ میں کسی کے نکاح میں ہوں، شادی ہونے والی ہے میری۔ وہ باہر کی طرف جانب بھاگ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ پیچھے نہیں موڑنا چاہتی تھی۔ رکو پری، کہاں جا رہی ہو؟ بات تو سنو۔ سارا اس کو پکارتے اس کے پیچھے دوڑی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھر پہنچتے ہی سجدہ ریز ہو گئی، آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اے اللہ، تو جانتا ہے نا میں عادی کی امانت ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ ہے بھی یا نہیں، دکھتا کیسا ہے، مگر میں نے تو ہمیشہ اسی
के लिए अपनी मोहब्बत बचा कर रखी है, फिर मैं आज किसी और के लिए कैसे आंसू बहा सकती हूँ? तू कैसे मेरे दिल को किसी नामहरम की मोहब्बत के लिए मोड़ सकता है? ऐ अल्लाह, मुझे हौसला, हिम्मत और सब्र अता कर, मुझे इस मुश्किल से निकाल। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा तूने किया है, मगर मेरे जज्बात को आदि की अमानत में ही रख। मैं इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकती हूँ? मेरे दिल में किसी नामहरम की मोहब्बत ना डाल। जयनमाज तय करते ही मोबाइल उठाया जो कब से बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सारा, किधर? और सॉरी यार, वो सारा की कॉल उठाते ही इस्लाम के साथ माजरत भी कर गई। एक मिनट सांस लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो क्या है कि हिजाब सारा की बात काटते हुए बोली, तुम्हारे जाने के फौरन बाद सर अली भी कॉलेज से निकल गए थे। वो अपने हवास में नहीं लग रहे थे और अब खबर मिली है कि इनका कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत जख्मी हुए हैं, अभी आईसीयू में है। सारा फिक्रमंदी से बोली, चलो अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और शफा दे, हम दुआ ही कर सकते हैं। हिजाब जब्त करके बोली, सही, अल्लाह हाफिज, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। कहते साथ हिजाब ने दूसरी जानिब का जवाब सुने बगैर ही कॉल काट दी और वो जो कब से जब्त किए बैठी थी जोरों की तार रो पड़ी थी। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं कौन सा मोहब्बत करती हूँ? आदि की अमानत हूँ। ऐ अल्लाह, बस इन्हें ठीक कर दे। हिजाब खुद को समझाते हुए आखिर में फिर से सर हिलाकर अली के लिए दुआ कर गई। माजी ज़ारून के इंतकाल के चंद दिन बाद परी की माँ, जो कि ज़ारून की वफात पे कोमे में चली गई थी, भी इस दुनिया से चल बसी। हंसता बसता घर बिखर गया था। परी अब ज्यादा वक्त बुआ बेगम के साथ इनके कच्चे मकान में गुजारा करती, क्योंकि बुआ बेगम इसका बहुत ख्याल रखती थी। वक्त कहाँ कैसे कैसे किसी के लिए रुकता है। परी के लिए भी ना रुका और वो मैट्रिक का इम्तिहान देने वाली थी, मगर बचपन में ही इसका निकाह इसके तायाजाद आदि से करवा दिया गया था। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बुआ। परी पुरसोच अंदाज में बोली। परी बेटी, भी अम्मा चाहती हैं कि तुम्हारे पर्चे खत्म होते ही तुम्हें रुखसत करवाकर आदि बाबा के कमरे में भेज दिया जाए। बुआ बेगम फिक्रमंदी से बोली, ऐसा नहीं होगा, हम भाग जाएंगे, आप तैयारी कर लेना, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और अपने बाबा का बदला भी तो लेना है। परी आंसुओं को पूछते हुए बोली, बेटा इंतजार करो, अच्छा वक्त भी आएगा, और ऐसा ना हो कहो कोई सुन लेगा। बुआ बेगम इधर उधर नजरें दौड़ाती बोली, बुआ बाबा कहते थे इंतजार ना करो, वक्त कभी दुरुस्त नहीं होगा, वहीं से शुरू करो जहां खड़े हो और मौजूदा वसाइल का इस्तेमाल करके काम मुकम्मल करो। परी ने अपने बाबा की बातों को याद करके कहा, बेटा रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बुआ बेगम इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर इसे गले लगाकर बोली, आज परी का आखिरी पर्चा था। बुआ बेगम इसके कहने के मुताबिक पहले ही घर से निकलकर इसके स्कूल का रुख कर चुकी थी। शिद्दत की सर्दी हो रही थी और सुबह से बर्फबारी भी हो रही थी, इसीलिए अपने घरों में थे। गांव में माँ सिवाय पेपर देने वाले बच्चों के कोई आदमजाद दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए इन्हें भागने में कोई मुश्किल ना हुई। शहर पहुंचकर परी पानी के घर से बुआ बेगम को सड़क किनारे बिठाकर पानी की तलाश में निकल आई और वहीं सारा से टकरा गई। सारा इसे अपने साथ ले जाने के लिए बात जिद थी। ठीक है बुआ भी साथ है, इन्हें भी ले चलते हैं, मगर कुछ दिन हम यहीं कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। परी कुछ सोच कर बोली, ओके बाबा, सही है, चलो। सारा ने हार मान ली। सड़क के किनारे पहुंचकर क्या देखते हैं कि लोग जमा हुए हैं। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बेचारी औरत मौका पर ही जहां बहक हो गई थी। परी के कानों में बहुत सी आवाजें पड़ रही थी, मगर बुआ बेगम की लाश को देखते ही परी बेहोश हो गई। 3 दिन के बाद जब परी को होश आया तो खुद को सारा के घर पर पाया। सारा बुआ कहाँ है? परी ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर पूछा। परी वो अब नहीं रही और तुम 3 दिन से बेहोश थी, इनकी तदफीन कर दी गई है। सारा इसे गले लगाते सब चीजों से आगाह कर गई। और हाँ, अब तुम यहाँ रहोगी हमेशा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे हौसला दे रही थी। हाल सारा, साद और उमर तीनों ही इसकी टीम के यहाँ मौजूद थे। मुझे खबर मिली है पाकिस्तान की किसी मस्जिद में बम लगाया गया है, जिससे हजारों लोगों की जान को खतरा है। पर्दे के अकब से मर्दाना आवाज आई, तो किसने लगाया? हमें कैसे मालूम होगा? और कहाँ लगा है? हम लोगों को कैसे बचाएंगे? सारा ने ताज्जुब और फिक्रमंदी से सवालात की बुझाड़ कर दी। खुफिया जराये से इसका नंबर मिला है, जिसे उमर ने ट्रेस करके इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। एक मरतबा फिर हमें वहीं से आवाज बरामद हुई। तो वो कौन है? वो अभी जाकर इससे सब गुलवा लेता हूँ। साथ जज्बाती हुआ, रुको, तुम लोग मेरे कहे बिना कुछ नहीं कर सकते, और ये हमारी आखिरी सीक्रेट मिशन है। मजीद हम हुकूमत के इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं कर सकते, और इसके बाद आप लोग अपनी अपनी जिंदगी गुजारोगे, हमारा कोई राब्ता नहीं होगा। और नंबर से मालूम हुआ है कि वो आर्मी का कोई सीक्रेट एजेंट रहा है, मगर ज़ाती मफाद के लिए गद्दारी का मर्तकब हुआ, और ये काम भी इसी का है। मैं उमर
इस लोकेशन पे जाएंगे, आप दोनों हमसे राब्ता में रहना। मतलूबा जगह पहुंचकर मालूम होते ही आप दोनों ने फौरन वहां पहुंचकर बम को फटने से रोकना है। किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। वो इन्हें मालूमात से आगाह करते साथ वार्न भी कर रहा था, मगर साथ के साथ नहीं जाऊंगी। आप अपने ज़ाती मसाइल खुद तक महदूद रखें, काम में ना लाएं। बेजा जिद से हज़ारों लोगों की जान जा सकती है, जिसके जिम्मेदार आप होंगी। सारा की बात मुकम्मल होने से पहले इसने रोक कर तंबीह की थी। ओके। वो तीनों एक साथ बोले। सारा और साथ के साथ जाते ही पर्दा गिरा और एक नकाब पोश लड़की सामने आई। उमर को हैरत का झटका लगा। सालों से जिस लड़की के अंडर वो काम कर रहे थे, एक लड़की जिसने अपने लोगों की हिफाजत के लिए कितने ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिए थे। वो हमारी हैरत के मजीद कुछ ना बोल सका। हाँ, मैं लड़की हूँ और ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी और यही दफन हो जानी चाहिए। अब अपने काम पर ध्यान दो। हाँ, मैं लड़की हूँ और ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी और यही दफन हो जानी चाहिए। अब अपने काम पर ध्यान दो और चलो। वो उमर से हुक्माना अंदाज में मुखातिब थी। आप मेरे साथ जाएंगी या बाद में? उमर ने निगाहों को ज़मीन पर मरकूज करके पूछा। हम साथ जाएंगे, मगर मैं बाहर रुकूंगी। तुम होटल के कमरे में गैस छोड़ोगे जिससे वो बेहोश हो सके। इसके बाद मुझसे रब्ता करना, मैं भी आ जाऊंगी। वो मजीद तपाते हुए बोली। होटल के बाहर गैराज में गाड़ी खड़ी करके वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के शीशे से ओके का इशारा मिलते ही वो होटल की जानिब हिजाब के कहने की मुताबिक वो शख्स रूम में ही था। इसके गैस छोड़ते ही वो बेहोश होकर गिर गया था। हो गया काम? उमर की कॉल उठाते ही हिजाब ने बेसब्री से पूछा। यस मैम। उमर के जवाब के साथ ही राब्ता मुंतका हो गया। वो जूं ही कॉल बंद होते देख पीछे मुड़ा, हिजाब को सामने पाया। देख क्या रहे हो? चलो और अंदर जाकर इसे बांधो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो फिक्रमंदी से बोली। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले उमर ने इसे बांधा और हिजाब ने गैस बंद की। मैम, हो गया। वो इसे बांधकर हिजाब के जानिब मुड़ते हुए बोला। सही है, मैं इसे खुद तफ्तीश कर लूंगी, तुम बाहर रुको। वो निकाब को मजीद सख्त करते हुए बोली। मगर मैम, आप अकेली हैं, अकेले कैसे छोड़ दूँ, वो भी एक जराइम पेशा शख्स के साथ? वो फिक्रमंदी से बोला। ठीक है, तुम भी यही रहो। वो इसके अल्फाज में छुपे मतलब समझ कर बोली। बम कहाँ है? जवाब दो। इसके होश में आते ही हिजाब की जानिब से सवाल किया गया। हाँ, नहीं बताऊंगा, और अब तो 15 मिनट बाकी रह गए हैं, यहाँ से पहुँच नहीं सकोगे, तुम्हारे जानने का क्या फ़ायदा? वो सामने लगी कड़ी को देखकर खबासा से बोला। बताओ, वरना तुम्हारी बीवी इस वक्त मॉल में शॉपिंग कर रही है। उमर ने मारते कहा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं था खास ना लगा जिससे ये कम अज़ कम इन्हें मालूमात फराहम करेगा। इसे कुछ मत कहना, मैं बताता हूँ। वीडियो में अपनी बीवी का इर्द गिर्द अंजाम बंदों को देखते वो फिक्रमंदी से अंदाज में बोला। बको। उमर गुस्से से बोला। फैसल मस्जिद में। वो हार मानकर बोला। जल्दी से फैसल मस्जिद पहुंचो। इसके बताते ही उमर ने साथ को कॉल करके इन्फॉर्म किया। बाबा को क्यों कत्ल किया था? वो तो तुम्हारे दोस्त थे ना, फिर क्यों इन्हें जहर देकर मारा? हिजाब ने बेबसी से सवाल किया। ओह, तू परी है? ये तुम हो? वो शख्स हैरत से बोला। वहीं उमर ने हैरानी से परी के सवाल पर इसको देखा। हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ, मगर तुम्हारी वजह से हमारा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। क्या बिगाड़ा था बाबा ने तुम्हारे? हिजाब ने आंसुओं को रोकते हुए पूछा। दोस्त नहीं था, नफरत थी मुझे इससे। हर जगह हर काम में इसकी तारीफ सुनकर मेरे कान पक गए थे। हर काम में वो आगे, जहाँ वो होता वहीं मैं किसी को दिखाई ना देता, इसीलिए इसे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया। इसके जाने के बाद भी कोई अच्छा काम मैं करूं, इसी की तारीफ सुनने को मिलती है। इसका दोस्त हूँ, इससे सीखा सब। अरे नहीं हूँ मैं इसका दोस्त। आखिर वो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? आज मैं जो भी हूँ इसका जिम्मेदार, इसके पीछे की वजह तुम्हारा बाप है। वो चिल्ला कर बोला। हिजाब वहीं कुर्सी पर ढह गई। माजी। परी बेटा, जाकर आसान नमाज की किताब लेकर आओ, आज आपको नमाज सिखाऊंगा। जारून परी को पिचकारते हुए बोला। मैं भी नमाज पढ़ूंगी, अल्लाह से बातें करूंगी। खुशी से कहते हुए वो कमरे की जानिब दौड़ी। बाबा की मेज से आसान नमाज किताबचा उठाकर ला रही थी कि बाबा की आवाज़ पर वहीं जम गई। हाँ असगर, मैं तुम्हें ही कॉल करके बताने वाला था कि मैं पहुंच गया हूँ खैरियत से। तुम परेशान ना होना कि तुम्हारी कॉल आ गई। ज़ारून मुस्कुराते हुए बोला। मतलब जिंदा हो? जहर ने अभी काम नहीं किया। दूसरी जानिब खबासत भरा कहका उभरा। क्या मतलब? कौन सा जहर? क्या बातें कर रहे हो? ज़ारून ने परेशानी से पूछा। हाँ, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। और जाते हुए हमने साथ चाय पी, मैंने तुम्हारे कप में जहर मिला दिया। अभी तुम सिसक मरोगे। साथ ही एक और कहका गूंजा। ज़ारून के मुंह से खून और झाग निकलते देख परी भागती हुई आई। फोन स्पीकर पर होने की वजह से वो सारी बातें सुन चुकी थी। अभी कुछ देर पहले ही तो ज़ारून आया था, इसने तो अभी आयतल कुर्सी भी सुनानी थी, नमाज सीखनी थी। बाबा, क्या हो रहा है आपको? बोल क्यों नहीं रहे हैं?
नमाज सिखाए ना मुझे, मैं आयतल कुर्सी भी सुनाऊंगी, आपकी हर बात मानूंगी। वो नन्ही सी परी रोते हुए क्या कह रही थी शायद खुद भी नहीं जानती थी। हाल मैम पुलिस आ गई है, अगर आप कहें तो इस शख्स को अरेस्ट करवा दूं। उमर की आवाज़ से वो माजी की तल्ख यादों से बाहर निकली। हाँ, आंसू पूंछकर कहा और वहां से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शुक्राना नवाफल अदा किए। आज वो खुश थी, अपने बाबा कातिल को फांसी फंदे तक पहुंचा चुकी थी, जहां से इसे अब कोई बचा नहीं सकता था। इसने अपनी डायरी उठाई और मामूल के मुताबिक पूरे दिन की रोदाद इस डायरी में रकम की। पता नहीं क्या होगा, कोई मुझे कबूल करेगा भी कि नहीं। वो सारा को मिलते परेशान से बोली। सारा, क्या आदि मुझे कबूल करेगा? हिजाब ने बेचैनी से कहा। हाँ परी, इंशाल्लाह जरूर, और देखना सब अच्छा होगा। मैं दुआ करूंगी, अपना ख्याल रखना और वहां जाकर मुझे भूल ना जाना। सारा इसे तसल्ली देते हुए कहा। पागल, तुम्हें कोई भूल सकता है? हिजाब इसके गाल खींच कर बोली। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सारा ने इसे ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। सर्दियों की ठिठुरती सुबह गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवान दवाती, निकाब से बाहर झांकती इसकी काली भूरी आंखें खिड़की के इस पार के मनाजिर को अपने अंदर समो रही थी। आसमान की बुलंदियों को छूते बुलंदो बाला पहाड़, जर्द पत्ते जो सड़क के किनारे पर बिखरे हुए, जिन्हें देखकर ये महसूस होता कि छूने से टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, और इन पर पड़े शबनम के कतरे ने इनको मजीद दिलकश बना दिया था। इन चंद सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। सड़कें पक्की हो चुकी थी। गांव की ताज़ा हवा के जिस्म से टकराते ही इसकी रूह में ऐसा सुकून उतर आता था जैसा खुशियाँ अपनी आमद की नुईद सुनाती हूँ। इसके दरवाजे पर दस्तक दिए बैठी हूँ। हवेली के बाहर पहुँचते ही वो अपने ख्यालों से बाहर आई। ड्राइवर से सामान हवेली के अंदर रखने का कहकर हवेली में कदम रखने लगी कि चौकीदार की आवाज़ पर चौंकी। जी मैडम, आप कौन हैं और अंदर कहाँ जा रही हैं? चौकीदार सवालिया नजरों से बोला। मैं हिजाब हूँ, परी अदनान साहब की मंकूहा। परी कंफ्यूज होते बोली। जी मैं भी अम्मा को बताता हूँ। हैरत को छुपाए चौकीदार हवेली के अंदर चला गया। इसके पीछे ही वो भी हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी, यहाँ भी सब कुछ बदल गया सिवाय हाल के कोने में लगी इसकी बचपन की तस्वीर के, जो शायद घर वाले चाह कर भी ना उतार सके थे। भी अम्मा, परी बीबी आई हैं। चौकीदार ने भी अम्मा के सामने ही आकर कहा। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर पहले की चहल पहल थम गई। सब जो कामों में मगन थे हॉल की जानिब बढ़े। ठीक है, तुम जाओ। बी अम्मा की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम बी अम्मा, कैसी हैं? हिजाब ने सलाम के साथ ही डरते हुए अहवाल भी पूछा। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया बी अम्मा की तबीयत का? तब ये ख्याल ना आया जब किसी के साथ भाग रही थी। जीनत ने जबान का जहर उगला। वालेकुम अस्सलाम बी अम्मा जीनत को खामोश रहने का इशारा करते बोली। क्रीम दीन, छोटी बेगम साहिबा का सामान इनके कमरे में लगाओ, साथ ही क्रीम चचा, यहाँ के पुराने मुलाजिम को आवाज़ दी। बी अम्मा, वो मैं हिजाब ने कुछ कहना चाहा। बस जाओ, जाकर आराम करो, जो भी बात होगी दिन के खाने के बाद, शाम को चाय पी होगी। बी अम्मा ने इसकी बात मुकम्मल करने से पहले ही खामोश करवा दिया। बी अम्मा, इस लड़की को आप कैसे कबूल कर सकती हैं? इसने हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जीनत आदि की माँ गुस्से को दबा कर बोली। हमने कबूल नहीं किया, मगर इससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है और इस घर में इसका भी हिस्सा है, इसलिए यही रहेगी। बाकी आदि अगर इसे छोड़ना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं, बी अम्मा ने दो टोक अंदाज में कहा। कमरे में दाखिल होते ही इसे माँ और बाप की याद बेहद सताने लगी। आंसू तक थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बचपन की सोचों में गुम थी कि रिंग टून से हाल में लौटी। वालेकुम अस्सलाम सारा, कैसी हो? काल उठाते ही सलाम का किया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, तुम बताओ कैसी हो? कब पहुंची? और वहाँ सब ठीक है ना? तुम रोई हो ना? कोई मसला तो नहीं है ना? देखो अगर कोई मसला है तो तुम वापस आ सकती हो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, सारा ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं यार, कोई मसला नहीं। और बी अम्मा ने कहा है कि शाम में बात होगी, मगर दोपहर के खाने पर ही बात करना चाहती हूँ। वैसे भी आदि अभी हवेली में नहीं है। हिजाब पर सोच अंदाज में बोली। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तुम्हें कुछ बताना था? सारा परेशानी से बोली। हाँ बताओ ना। और परेशान क्यों? हिजाब ने फिक्रमंदी से कहा। मेरा रिश्ता आया था, अम्मी को लड़का अच्छा लगा तो शादी की तारीख रख दी। सारा बेख्तियार रो पड़ी थी। तो इसमें रोने की क्या बात है पागल? और ये तो खुशी की बात है। लड़का कैसा है और तुम्हें कैसा लगा? हिजाब ने बेसब्री से पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं लाख कोशिशों के बावजूद साथ को भूल नहीं पाती। बहुत मोहब्बत करती हूँ, सारा ने रोते हुए कहा। देखो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, और तुम तो इतनी मजबूत हो, और अल्लाह से ज़्यादा तो तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं, और ना कोई काबिल मोहब्बत है। इसे अल्लाह की रज़ा जानकर कबूल करो, इंशाल्लाह खुश रहोगी। हिजाब ने इसे समझाते हुए पुरयकीन होकर कहा।
इंशाल्लाह तुम ठीक कह रही हो, अल्लाह हाफिज। सारा ने कहते ही फोन बंद कर दिया। जी आ जाओ। हिजाब ने मोबाइल मेज पर रखते हुए दस्तक की आवाज पर कहा। बी अम्मा खाने पर बुला रही हैं, करीमुद्दीन की बेटी जो अब यहाँ पर काम करती थी। उन्होंने कहा ओके तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ। हिजाब ने कहते ही वॉशरूम का रुख किया। खाने की मेज पर सब मौजूद थे मगर खाना कोई नहीं खा रहा था। सबकी नजरों का मरकज हिजाब थी जो चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटे बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। मगर इस वक्त मसवाई बी अम्मा सबको जहर लग रही थी, खसूसन जीनत को। बी अम्मा मैं चाहती हूँ आप आदि से बात करें, अगर वो चाहते हैं रुखसती कर लेते हैं। हिजाब ने अली के ख्याल को जहन से झटक कर कहा। ये वही जानती थी कि कितना जब्त किए वो ये अल्फाज अदा कर रही थी। ये इसकी डिटाई देख रहे हैं। आपको क्या मालूम कहाँ कहाँ से मुंह काला करके आई है। इसे क्या लगता है आदि इसे कबूल कर लेगा? ये पर्दे का धोखा किसी और को देना। बीबी हम सब तुम्हारी असलियत से वाकिफ है और आइंदा अपनी नापाक जुबान से मेरे बेटे का नाम ना लेना। जीनत जहर उगल रही थी। आज शाम को ही रुखसती होगी, मैं तैयार हूँ। चचा से कहें कि वो रजिया को कहकर परी का सारा सामान मेरे कमरे में रखवा दें। आदि सारी गुफ्तगू सुनकर सीढ़ियां उतरते हुए बोला। बेटा तुम कब आए और ये सर पर चोट कैसे लगी? जीनत आगे बढ़कर आदि को गले लगाकर बोली। इसकी आवाज पर परी दुपट्टे से चेहरा ढांप गई कि आदि की आवाज पे इसके बढ़ते हाथ वहीं रुक गए थे। शोहर हूं मैं तुम्हारा, तुम मुझसे क्या पढ़ता? और यहाँ पे कोई नामहरम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसकी जरूरत वहां थी जहां तुम पे मेरी इज्जत को दागदार करने गई हुई थी। वो तंजन बोला। नहीं आदि ऐसी। वो बगैर मुड़े बोली थी। आदि नहीं अदनान, अली नाम है मेरा। सब अली कहते हैं, तुम भी कह सकती हो। अभी हिजाब की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि अली यानी आदि ने इसकी बात काट कर इस नाम के साथ ही हिजाब को अली की याद ने आन गिरा। आवाज पे गौर किया तो चौंक कर सीढ़ियों की जानिब मुखातिब शख्स को देखा। अली पे नजर उठते ही वो कुछ भी देखने से कासिर रही, यानी कि आदि ही अली है। मालूम है बहुत खूबसूरत हूँ। शाम में फुर्सत से देखना। हिजाब कि यूं गौर से देखने से वो गुस्से से बोला। वो हिजाब को पहचान ना पाया था क्योंकि निकाब के बगैर इससे कभी देखा नहीं था। नहीं हिजाब इसके यूं कहने होश में आते यही कह सकी और कमरे की तरफ दौड़ गई। माँ मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, परेशान ना हो। आप कहें तो मैं खाना लगा दूँ? आदि मुस्कुराकर खाना खा लूँ? आदि मुस्कुरा कर कहते खाने की मेज की तरफ बढ़ गया। वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी बहुत परेशान लग रही थी, आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कब निकाह नामे पर साइन किए और कब खुद को किसी गैर के हवाले किया। कमरे में साथ को अपने जानिब बढ़ते देखकर वो घबरा गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खौफ के मारे अल्फाज भी सही से अदा नहीं हो रहे। जी मैं और मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ। वो मुस्कुराकर इसके करीब बैठ गया। तुम अनजान थे ना कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, तभी तुमने शादी की। मैं चली जाऊंगी सुबह ही, प्लीज सिर्फ अभी मुझे यहाँ रुकने दो। वो नजरें झुकाए जाने क्या बोल रही थी। वो इसके होठों पर उंगली रखकर बोला। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ जो सब मैंने तुम्हें कहा और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। एक पाक दामन औरत के किरदार पर उंगली उठाने को कोई हक नहीं। इसकी जो चाहे सजा दो, तुम हक है और मैं कबूल करूंगा। मैं जानता हूँ ये तुम हो, इसीलिए तो निकाह किया है। मैं तुम्हें तुमसे पहले का पसंद करता था मगर वो सब मैंने जानबूझकर कहा तुम्हारा दिल टूटे और तुम अल्लाह के नज़दीक हो। मैं जानता था इसमें तुम्हारी दोस्त तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाने देगी। तुम पाकीज़ा तो थी ही, मैं बापर्दा भी देखना चाहता था, इसीलिए अगर मैं तुम्हें कहता तो वो तुम मेरे लिए करती। मगर अब ये तुमने किसी के लिए नहीं बल्कि रब की रजा के लिए किया। बस मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता था। मैं दुनिया के साथ जन्नत में भी तुम्हारा हमसफर बनने का ख्वाहिशमंद हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी। वो शर्मिंदगी से कहते हुए इज़हार मोहब्बत भी कर चुका था और सारा बस हैरान इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? नवाफिल अदा नहीं करने? वो सारा को हैरान देखकर वो वहाँ टूटे फूटे अल्फाज अदा कर रही थी। मोजज़ात ऐसे भी होते हैं, आज मुझे यकीन हो गया है। सारा साथ के मुस्कुराते चेहरे को देखकर महज यही सोच सकी। हिजाब कमरे में आकर अपनी डायरी ढूंढने लगी मगर वो इसे कहीं ना मिली। इसका सारा सामान आदि के कमरे में ले जाया जा चुका था। बी अम्मा आदि के फैसले पर बहुत खुश थी मगर कहीं कहीं इसे इस बात का भी दुख सताया जा रहा था काश आदि को भी मेरा एतबार होता तो वो यूं बदगुमान ना होता। ब्राइड कहाँ है? सर ने कहा है शाम होने से पहले तैयार करना है। ब्यूटिशियन भी अम्मा से पूछ रही थी। आए मैं ले जाती हूँ आपको इनके कमरे में। फातिमा आदि की छोटी बहन ने कहा और हिजाब के कमरे का रुख किया। बाहर जाती हिजाब फातिमा के साथ ब्यूटिशियन को देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए? फातिमा इसे बाहर देख कर पूछा। नहीं, वो मेरी डायरी नहीं मिल रही, वही देखने जा रही थी। हिजाब ने कहा ओहो शायद भाई के कमरे में सामान के साथ चली गई हो।
बाद में देख लेना, अभी तैयार हो जाओ वरना भाई गुस्से में होंगे। फातिमा मुस्कुराकर कहते हुए चली गई। हिजाब भी तैयार होने लगी। टेरेस पर बैठा आदिल सिगरेट पर सिगरेट जला रहा था। गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। काश तुम भी हिजाब की तरह होती, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ हिजाब और कहाँ तुम? कहाँ वो इतनी सिंसियर हम अपने हमसफर के साथ, और कहाँ तुम महज एक शराब? तुम मुझे छोड़कर ना जाती तो यकीनन तुम मेरे प्यार की हकदार होती। तुम्हारी इस खूबसूरती, इस मासूम चेहरे का क्या फायदा? तुमने जो हम सब के साथ किया नाकाबिले फरामोश है। क्यों भागी तुम? और साथ कौन था? किधर गया वो? वहां क्यों आई? क्या तुम्हें जरा तरस ना आया मुझ पर, घर वालों पे और भी अम्मा पे? कितना चाहती हैं तुम्हें। वैसे तो तुम बड़ा पर्दा करती हो, फिर क्या हुआ? इतना बड़ा गुनाह? किसके निकाह में होकर किसी के गैर के साथ भागी? क्यों? आखिर रुखसती के बाद हर सवाल का जवाब मैं तुमसे लूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। हिजाब तैयार होने के बाद आदिल के कमरे की जानिब बढ़ी। कमरे में किसी को ना पाकर मुतमईन होती। डायरी सामने रैक पे ही मिल गई थी। आज जो भी हुआ हरफ बहरफ तहरीर कर रही थी। वो खुश थी। मैं बुआ बेगम के इस कच्चे घर में जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता है। बाबा, आप और बुआ इसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। आप आज होते तो बहुत खुश होते, अपनी दुआओं के साए में रुखसत करते। आज मुझे दुआ देने के लिए आप नहीं हैं। भी अम्मा भी नाराज़ है, मगर मैं जानती हूँ ज़्यादा देर ना रह सकेंगी। वही नमाज शुक्राना भी अदा कर लूँगी। ये सोचते ही हिजाब जय नमाज उठाकर बाहर निकल गई। डायरी इसके हाथ से वहीं छूट गई। दुल्हन के सुर्ख रंग के जोड़े में तैयार होती हिजाब जो हवेली से बाहर निकलता देख टेरेस से नीचे आया कि बी अम्मा की बातों ने इसके पाँव वहीं जकड़ लिए। फातिमा बेटा देखो, हिजाब तैयार हो गई है तो आदि से कहो कहकर रुखसती का बंदोबस्त करते हैं। बी अम्मा फातिमा को ताकीद की, आप ये अच्छा नहीं कर रही। बगोड़ी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांध रही हैं, वो भी अंधा हो गया है। ज़ैनब नखुआ से बोली। बाहर की जानिब आदि के कदम कमरे की जानिब बढ़े। हिजाब कौन? बी अम्मा। आदि ने अपनी सोचों को झटक कर, परी बेटा, परी हिजाब है ना? परी तो लाड से कहते हैं और जारून कहता था। फिर सब ही कहने लगे। बेटे का नाम लेते वो रोने लगी। अम्मी, परी को किसी लड़के के साथ भागते आपने खुद देखा था? आदि ने कुछ सोचकर माँ से पूछा। बेटा ये सवाल कहाँ से आ गया? ज़ैनब नजरें चुरा गई। जी अम्मी, मैं पूछ रहा हूँ, सच बताएं, खुदा के लिए कुछ न छुपाना। वो खुद पर काबू करते हुए बोला। नहीं, वो बुआ बेगम के साथ हवेली छोड़कर गई थी, शायद आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने इसकी और बुआ बेगम की बातें सुन ली थी। झूठ इसलिए कहा कि मैं नहीं चाहती थी वो इस घर की बहू बने। पहले इसकी माँ को मुझसे ज्यादा अहमियत मिली और अब इसे मिलेगी, और अब रुखसती नहीं करवाओगे? जीनत नफरत से बोली। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह साकित रह गया, मगर आदि वो बाहर की तरफ भागा। भाई क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? सुने तो। फातिमा आदि के पीछे भागते हुए बोली। परी को बाहर जाते देखा, पता नहीं कहाँ गई है। वो रुका और परेशानी से बोला। भाई वो अपनी डायरी ढूंढ रही थी, शायद वहां से कुछ मालूम हो। वो आपके कमरे में है, देखती हूँ। इसने फातिमा पर पुरसोच नजरों से देखा। ये सुनते ही कमरे की जानिब दौड़ा। फातिमा भी इसके साथ चल दी। ये तो नहीं है। आदि जमीन पर पड़ी डायरी उठाकर खोलते हुए, और जैसे जैसे वो पढ़ता गया मजीद कुछ न कह सका। डायरी को बंद करते हुए आंसू पहुंचकर बुआ बेगम के कच्चे मकान की जानिब दौड़ा, जो यहाँ से चंद मिनट के फासले पर था। आज इस पर से बहुत से राजों का पर्दा फाश हो गया था। साथ गाड़ी तेज चलाएं वरना परी नाराज हो जाएगी, और मैं इसे नाराज नहीं करना चाहती, बल्कि इसे सरप्राइज दूंगी। मेरी शादी आपसे हुई है, वो कितनी खुश होगी। तेज चलाएं ना, शाम को रुखसती है और सूरज ढलने को है। सारा बेचैनी से बार बार एक ही बात कह रही थी। अच्छा बाबा, और कितना तेज चलाऊं? बस पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता रह गया। और वो नाराज नहीं होगी। साथ प्यार से समझाते हुए कहने लगा। आपको कैसे मालूम कि वो नाराज नहीं होगी? सारा ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा। तुम ही तो कहती हो, वो इसे तुम पर यकीन है, हर जगह तुम्हारा साथ दिया है इसने। तुम्हारा इतनी सी बात ना सुनेगी। साथ एक मरतबा फिर सुलझा। बातों ही बातों में गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आ रुकी थी। बाबा, बुआ, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताए ना, कैसी लग रही हूँ? आज आपकी बेटी बहुत खुश है। इतनी खुशी आदि से मिलने की नहीं, आदि में के मिलने की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं मैं आदि से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इतनी के से बिछड़ने का सोच कर ही मेरी रूह जिस्म से निकलती महसूस होती है, मगर रब की मोहब्बत के आगे ये तिनके बराबर भी नहीं। ये खुशी तो ऐसे मालूम हो रही है जैसे इस रब से मुलाकात का वक्त आन पहुंचा है। ऐसा लग रहा है आज आपसे मिलूंगी बाबा, अपनी मोहब्बत, अपनी मंजिल, अपने अल्लाह से मिलूंगी। और कितना इंतज़ार बाकी है, जाने कब से वो क्या क्या कह रही थी। नवाफिल अदा करने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ए अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे तुझ पर यकीन कामिल था। मैं जानती थी
تو جو بھی کرتا ہے سب اچھا ہی کرتا ہے. کتنا بڑا معجزہ کیا تو نے. میرے شوہر کی محبت ہی میرے دل میں پیدا کی اور میں اسے غافل رہی اور مجھے گناہگار ہونے سے بچا لیا. بس اب تجھ سے ملاقات کی چاہ ہے. اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. سورۃ الفجر کی آیت پڑھتے ہی وہ سجدہ ریز ہو گئی. اچانک بادل گرجے, بجلی چمکی, ہر سو اندھیرا چھانے لگا. عادل بارش میں بھیگتا پری پری حجاب کو پکار رہا تھا, مگر بارش کے شور سے حجاب کوئی آواز نہ سن پائی. حالت سجدہ میں تھی. بجلی زور سے چمکی اور بوا بیگم کا قدیم کچا مکان خستہ حالی کی وجہ سے گر گیا اور حجاب وہیں دب گئی. سامنے کا منظر دیکھ عادی چلا اٹھا. بارش ہلکی ہو گئی تھی. بی اماں, سارا اور باقی سب بوا بیگم کے گھر کو آ رہی تھی کہ عادی کی چیخوں اور سامنے کے منظر نے پیروں سے زمین نکال لی. بارش ختم ہونے سے پہلے ہی ملبہ ہٹا لیا گیا, مگر ملبہ ہٹانے سے قبل ہی حجاب کی روح پرواز کر چکی تھی. رک جائیے, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. پردے میں ملبوس سارا, جو کہ سب مکینوں کو بوا بیگم کے گھر کی جانب آتا دیکھ حویلی کے دروازے سے ہی یہاں آ گئی تھی, کی آواز نے عادی کے قدم وہیں روک دیے جو حجاب کے اٹھانے کے گھر سے آگے بڑھا تھا. جب زندگی میں وہ پاکیزہ رہی ہے, گناہوں کی دلدل سے خود کو بچایا, زندگی کا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا, تو آپ مرنے کے بعد بھی کیوں اس کی روح کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی میں کیا کم دکھ دیے ہیں؟ اب آپ اس کے محرم نہیں رہے ہیں. اسے آپ ہاتھ تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتے. سارا کی زبان سے نکلتا ایک ایک لفظ عادل کو وہیں رکنے پر مجبور کر گیا. تایا جان اور چچا جان اس کی لاش کو لے جا رہے تھے. عادی کو یہ منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا. میں نے کہا تھا نا, میں دیر سے گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی. دیکھے نا ساتھ, وہ ناراض ہو گئی مجھ سے. وہ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ کوئی تو اسے کہے. اس کی دوست آئی ہے, وہ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی؟ اس نے کہا تھا وہ مجھے گرنے سے پہلے تھامنے کی. آج میں کھائی میں گر گئی ہوں, مگر وہ تھام نہیں رہی. سارا کے الفاظ عادل کے سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے, مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر ڈھہ گیا تھا. پری پری پری, آج وہ کتنے مہینوں بعد ہوش میں آیا تھا, مگر وہ آج بھی اسے پکار رہا تھا. بی اماں بتائیں نا, پری کہاں ہے؟ وہ میری پری ہے نا. بی اماں بولے نا. وہ جواب ملنے پر دیوانہ وار چلا اٹھا. بی اماں, وہ تو کہتی تھی اچھی لڑکیاں لڑکوں سے باتیں نہیں کرتی. پھر کیوں میں نے اس کا یقین نہیں کیا؟ کیوں اسے بے وفا دھوکے باز سمجھا؟ کیوں اسے بد کردار کہا؟ وہ تو پاک دامن تھی نا. ہاں, تب ہی وہ مجھے مل کے بھی نہیں مل سکی. میں اس لائق ہی نہیں. وہ زاروں کو تار رو پڑی, مگر اسے کوئی تسلی نہیں دے سکا تھا. تسلی کے لیے کچھ باقی نہیں بچا. بیٹے کی تکلیف دیکھ کر زینت نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے کہ ماں دیکھو نا, تمہارا بیٹا کتنا بد نصیب ہے. اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. ساری زندگی اس کے پاس رہ کر بھی دور رہا. وہ نقاب میں لپٹی کالی بھوری آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی. وہ ایک بار پھر رو پڑا. اس کا یہ حال برداشت سے باہر ہو چکا تھا. سب کمرے سے باہر چلے گئے تھے. وہ اس کی قبر پر چادر ڈال کر دیوانہ وار چلا رہا تھا. تم کیوں دور چلی گئی؟ دیکھو, میں تمہارے لیے چادر لایا ہوں تاکہ تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے. اور اس کے لفظ پر وہ اٹکا اور بولا, مجھے معاف کر دو نا. اور کتنی سزا دو گی؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سزا ہوگی کہ تم رخصت الوداع بھی نہ کر سکا؟ لٹ چکے عشق میں تو ایک بار پھر عشق کر. کس کو معلوم کہ تقدیر سنور بھی جائے. اس قدر قرب کے بعد اسے جدا ہو جانا. کوئی کم حوصلہ انسان ہو تو مر بھی جائے. احمد فراز. شام سورج غروب ہو رہا تھا. ہر کوئی اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا. وہ مسجد میں حالت سجدہ میں تھے. آنسو اس کی چہرے کے ساتھ ساتھ جائے نماز کو بھی بھگو چکے تھے. ساتھ اسے ڈھونڈتے مسجد میں داخل ہوا. آپ یہاں اٹھو, گھر چلتے ہیں. سب پریشان ہو رہے ہیں. اسے دیکھتے ہی ساتھ نے اٹھایا. چپ, تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اس دنیا میں تو وہ مجھے چھوڑ گئی, شاید وہاں پہ ہم ساتھ ہوں. وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ دوبارہ سجدہ ریز ہو گیا. پاس رکھی حجاب کی ڈائری پر ساتھ کی نظر پڑی. ہوا سے آخری صفحہ کھلا. تم تو ناراض ہو کر مجھے چھوڑ گئی ہو. میں اپنے رب کو راضی نہیں رکھ سکتا. اللہ تمہارا دوست ہے نا, اسے کہو نا مجھے بھی اپنے قریب کر لے اور اپنے دوست بنا لے. یہ پڑھ کر ساتھ بھی خود کو رونے سے باز نہ رکھ سکا. جانے کیوں اسے یقین کامل ہو گیا تھا عنقریب جنت میں دونوں ساتھ ہوں گے. 3 سال بعد سارا نے حویلی کا رخ کیا تھا. وہ حجاب کی قبر پر جانا چاہتی تھی. بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ننے حدید نے سعد سے پوچھا. ہم ماموں سے ملنے جا رہے ہیں. سعد نے
सोचते हुए कहा, वो कहाँ रहते हैं? हदीद ने एक और सवाल किया। वो यहाँ रहते हैं। साद ने गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रोक कर कहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार? हवेली में दाखिल होते ही अदनान को देखते साद ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटू, तुम कैसे हो? वो हदीद को उठाते हुए बोला, मामू मैं ठीक हूँ। हदीद मासूमियत से बोला, आप लोग अंदर जाओ, मैं गाड़ी से परस लेकर आऊँ। सारा ये कहकर बाहर निकल गई। उदास हो हदीद को आदि की गोद से उतार कर अंदर भागते देखकर साद ने पूछा, नहीं तो? आदि ने मुख्तसरन कहा, तो तुम खामोश क्यों हो? साद ने सवालिया अंदाज में कहा, खामोशी इबादत है। आदि दो टोक बोला, रोते हो तुम? साद ने पूछा, हाँ बहुत ज्यादा। इसने भी साफ कहा, कभी देखा नहीं रोते हुए। आदि के छोटे चचा की बेटी नाइला, जो चंद माह कबल लंदन से 20 सालों बाद आई थी, ने कहा, हर किसी के पास ये बसारत नहीं। अदनान ने दो टोक अंदाज में कहा, फिर कौन देखता है तुम्हारे आंसू? नाइला ने कहा, बकौल इसके इस पत्थर जैसे शख्स मजीद दिलचस्पी लेते हुए कहा, क्योंकि वो जब से आई थी बहुत कोशिश कर चुकी थी कि वो इसे अपनी तरफ माइल कर सके, मगर वो घर में कहाँ रुकता था। जब देखो मस्जिद में पाया जाता था। जिसको आंसुओं से मोहब्बत हो, इसने मुख्तसरन कहकर गुजरना चाहा। मोहब्बत करते हो किसी से? नाइला ने इसे जाते देखकर कहा, और इस सवाल ने इसके कदम रोक लिया। हाँ बेइंतहा। इसने एक नज़र नाइला की जानिब देखकर जवाब दिया और दोबारा नजरें झुका ली। किससे? नाइला ने तजस्सुस किया, वही जो मुझसे मोहब्बत करता है। इसने सुकून का सांस लिया और कहा, और कौन करता है तुमसे मोहब्बत? ये सवाल बाहर से आती सारा का था, जो आज भी इसे हिजाब के लिए माफ़ ना कर पाई थी। वो चाहती थी ये इसका अजीज जान तो इसका मान रखता। बस मेरा अल्लाह, वो कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया, मगर इसके जवाब ने सारा को वो सारे जवाब दे दिए थे जिसकी तलाश थी। आज इसे वो हिजाब जैसा लगा था। आज इसने इसे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो हिजाब का गुनहगार था, इसका नहीं। जब वो इसे माफ़ करके इसके होने को तैयार थी, तो मैं कौन होती हूँ इसे गुनहगार ठहराने वाली? वो महज यही बोल सकी। आज इसे यकीन कामिल हो चुका था कि रब का फैसला अजीम होता है। वो बेहतर लेके बेहतरीन देता है, और अगर वो बेहतरीन ना दे तो इसे अपने आप के लिए बेहतरीन बनाकर अता करता है। इसे लगा था शायद इन दोनों को इस जहां में भी एक दूसरे के लिए चुना गया है। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की नावल। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। फ़ी अमान अल्लाह।